Welcome, my dear students. I'm CA Gayatri Sengupta Shetty, and today we are going to do ratio analysis. What is ratio? Ratio, it is an arithmetical expression of relationship between two interdependent or related items. For example, A is to B, 2 is to 1. It means A is 2 times of B. What do we mean by accounting ratio? Accounting ratio is a mathematical expression of the relationship between two items or group of items shown in the financial statements. हम जब financial statements में दो accounting ratio दिखाते हैं क्या करते हैं दो items को express करते हैं in mathematical form, that is accounting ratio. In some simple words, when ratios are calculated on the basis of accounting information, these are called accounting ratios. What is ratio analysis? Analysis of the financial statements based on accounting ratios is known as ratio analysis. Then first हम अभी start क्या करेंगे पढ़ने में pure ratio क्या है. What do you mean by pure ratio? It is a ratio expressed as a quotient, a result obtained by dividing one quantity by the another. एक क्वांटिटी के ऊपर हम जब दूसरे पी बाई क्यू रेशियो फॉर्म में हम अगर कुछ चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको प्योर रेशियो बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं करंट रेशियो. करंट रेशियो क्या बोलते हैं? Current asset by current liabilities. Okay, so if current assets are 20 lakhs and current liabilities are 10 lakhs, then the current ratio is 2 is to 1. ठीक है, मतलब current liability अगर 1 है तो current assets 2 है. So current assets is twice as current liabilities. Then we express the ratios in percentage. It is ratio expressed in percentage. For example, net profit ratio. It is calculated as a percentage of revenue from operations. If net profit is 10 lakhs and revenue from operations is 50 lakhs, then net profit ratio comes out to be 20%. क्या है? Net profit from revenue from operations, the net profit 10 लाख है और revenue from operations 50 lakhs. So how does it comes out? It comes out 20%. So it is expressed in the form of percentage times. Ratio को हम times में भी express करते हैं. It is expressed ratio. It is the ratio which is expressed in number of times. Trade receivables turnover ratio is 3 times calculated, 3 times that of the average trade receivables. अभी क्या है? Trade revenue from operations is 3 lakhs and average trade receivables that is 1 lakh. So 3 times trade receivables is of average trade receivables. So it is expressed in times. How many times एक पर्टिकुलर अमाउंट का कितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रैक्शंस में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज द रेशियो विच इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 3/4 और 0.75. ठीक है. Liquidity ratio. These ratios show the ability of the enterprise to meet its short-term financial commitments. Short-term financial commitments जो है, जो short-term में हम कुछ मीट करना है, उसको बोला जाता है short-term assets and short-term liabilities. Current ratio, quick ratio. These are the liquidity ratios which are help us to find out whether the enterprise is in a position to meet its short-term commitments or obligations. सॉल्वेंसी रेशियोज. ये सॉल्वेंसी रेशियो किस में हेल्प करता है? हमें हेल्प करने के लिए कंपनी का क्या पोजीशन है एक पर्टिकुलर डे में. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइज. फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या रेशियोज हम निकालते हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज. ओके, ये हमें बताता है एक कंपनी लॉन्ग टर्म में उसका फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, whether it is able to meet its obligations in the long term, out of the assets it's owning. Then we have the activity or the turnover ratios. These ratios measure the efficiency and use of the assets of the enterprise in generating the sales. These include trade receivables turnover ratio, trade payables turnover ratio, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ठीक है, तो अभी हम जब एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो हम क्या क्या निकालेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो.
Then we have the profitability ratios. Profitability ratios क्या बताता है हमें? About the gross profit, the net profit, operating profit ratio, earning per share, प्राइस अर्निंग रेशियो एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, अभी ये रेशियोज जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस हेल्प द इन्वेस्टर्स टू डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी. ये ओनर को हेल्प करता है बताने में कि ओनर इस कंपनी को और भी एक्सपैंड करेगा कि नहीं उसके प्रॉफिट की बेसिस में. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट टू डिपेंड सी हाउ मच प्रॉफिट दे अर्निंग टैक्सेस के लिए. एज वेल एज द ओनर कैन डिसाइड उसने जितने कैपिटल एम्प्लॉय किया था बिजनेस में उसको उतना रिटर्न आया कि नहीं. तो दीज आर द रेशियोज विच हेल्प्स द एंटरप्राइज टू सी वेदर दे गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, expand the business, or the investors, the various stakeholders get information on the basis of these ratios. ठीक है. What are the objectives of ratio analysis? अब हमने इतने सारे ratios पे just what are the terms which are used, we just learned about them. ठीक है, अभी हम जानेंगे हम ratio analysis क्यों करते हैं, what are the objectives. ठीक है, कुछ तो कारण होंगे जिसके लिए ratio analysis हम निकालते हैं. What is the reasons? Let's see. To simplify the accounting information, हमें जो accounting information मिला है उसको simplify करने के लिए, उसको समझने के लिए. To analyze the financial statements, जो financial statements उसको analyze करने के लिए, समझने के लिए क्या है उसका महत्व. तो जज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जो चल रहा है उसका ऑपरेशन ठीक से एफिशिएंटली चल रहा है कि नहीं. टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, टू हेल्प इन प्लानिंग एंड टू कंट्रोल. फोरकास्ट करना फ्यूचर में कितना इनकम होगा क्या होगा उसके बेसिस में प्लानिंग सेट करना, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा तो इट्स ओके, नहीं तो कंट्रोल प्लेस कर सो दैट इट रन्स अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. टू हेल्प इन कंपेरेटिव एनालिसिस, रेशियो हमें हेल्प करता है. 2 ईयर का एक एंटरप्राइज है जिसके 5 ईयर्स के मेरे पास रेशियोज दिए गए हैं, तो ऑन द बेस ऑफ द रेशियोज वी कैन डिसाइड विच कंपनी इज ऑन द बेटर स्टेट. ठीक है, टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द रीजन वाई वी डू द रेशियो एनालिसिस ऑफ एन एंटरप्राइज. जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है वैसे रेशियो एनालिसिस में कुछ लिमिटेशंस भी हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस? रेशियोज में बी मिसलीडिंग इफ दे आर बेस्ड ऑन इनकरेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. रेशियोज क्या है कि वी मेक द रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ सम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिस पे ये बेस्ड है, on the basis of which we find out the ratios, if they are incorrect then the ratios will be misleading. ठीक है. Variance in accounting practices, अगर 5 सालों में अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो किया गया है तो उनके बेसिस में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस में हम अगर रेशियोज तैयार करें और उसको कंपेयर करने की कोशिश करें, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज दे आर फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. राइट. इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. इन्फ्लेशन अगर कभी होता है उसका कोई भी यहाँ पे चेंज इफेक्ट दिखाई नहीं जाता है. It is only looking after the quantitative analysis and not qualitative analysis. कोई भी क्वालिटी के बारे में बताता नहीं, बस द क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें करने में हेल्प करता है. एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हैज इट इज हिस्टोरिकल एनालिसिस. ऑब्वियस रेशियो एनालिसिस जो करते हैं तो हमारे पास्ट जो डाटा है उसके बेसिस में हम कर रहे हैं, पास्ट इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के हमारे जो मिले हैं उस पर हम कर रहे हैं, तो इट गिव्स अस अ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा. ठीक है. Only symptoms are not cured. Rationalists can just tell us the state of the enterprise. लेकिन कैसे उसको ठीक करेंगे उसके बारे में कुछ बोला नहीं आता. नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है फिक्स जो हर कंपनी यूज़ करेगा फॉर फाइंडिंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ द कंस लाइक दैट. ओके. इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा रेशियोज में भी मिसलीडिंग. ओके, तो डाटा जो हमें मिला है, डाटा ये अगर एब्सोल्यूट ना हो, डाटा में परफेक्शन रहेगा, तो वहाँ से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तैयार करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उससे एब्जॉर्व करेंगे या गैदर करेंगे, दैट विल बी मिसलीडिंग. सो द रेशियोज बेस्ड ऑन दोज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी misleading. Not free from bias. Okay, if ratio analysis depends on the work of the historical past data, and data in the hands of the people. If the people are biased in cases जहाँ पे overstatement of profit, understatement profit, all this will lead to ratios which will give us mislead us, which will not help us to gather the correct information. And window dressing, almost all the time we see the accounting informations have been window dressed, and they have been made in such a way that to attract the investors. ठीक है, तो कि इन्वेस्टर को लगे हाँ चलो इसका अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी कंपनी का. दे मे हैव ओवरस्टेटेड द प्रॉफिट, दे मे हैव ओवरस्टेटेड द प्रॉपर्टी
प्रॉफिट रेशियो वी कैन सी कि द वो जो कंसर्न को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि इट इज रनिंग इन उसका कैपिटल से अच्छा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, ऑल दिस वी गेट फ्रॉम द ratio analysis. But they are maximum time window dress. That means what you say, they are represented in a better way so that it attracts the investor, attracts the owners, and they take the decisions on basing on them. Okay, so we can see all these are the limitations of ratio analysis. तो ratio analysis हमें जैसे help करता है, but जब उसमें use करेंगे we have to be very careful to see whether we are taking right decision or not. ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम पूरे चैप्टर पे. व्हाट इज रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग रेशियोज. सो अकाउंटिंग रेशियोज जो हम पढ़ेंगे वो चार पार्ट में है. एक है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो, एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ठीक है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू रीड इज अ लिक्विडिटी रेशियो. दैट इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न. एक कंसर्न शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या नहीं, सॉल्वेंट है मतलब वेदर इट इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है कि नहीं, वो हमें पता चलेगा. तो उसमें वी फाइंड आउट टू रेशियोज, वन इज करंट रेशियो एंड द अदर इज द क्विक रेशियो. What is current ratio? Current ratio is the current liability, current assets over current liabilities. जितने कंसर्न की जो एंटरप्राइज है उसके जितने करंट एसेट्स है डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज इट्स ओन. ठीक है, तो अभी करंट एसेट्स क्या क्या है, कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स पे, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, सैलरी डेटर्स, ओके, ओवर बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज क्या है, बिल्स पेबल. ठीक है, बिल्स पेबल हो गया, फिर हमारा वहाँ पे हो गया करंट sundry creditors. ठीक है, तो all these things we will deduct, bank overdraft, all these things we will deduct from the current, these are the current liabilities. So current asset by current liabilities, that is the current ratio. ठीक है, current ratio ideal क्या है, that is 2:1. All the current assets of the enterprise divided by all the current liabilities of the enterprise. ठीक है, that is the current ratio. क्या आइडियल रेशियो, 2:1. मैंने अगर करंट लाइबिलिटीज 1 है तो करंट एसेट को ट्वाइस होना पड़ेगा सो दैट इट इज एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस इन द शॉर्ट टर्म. इसमें एक नोट हमें लेना पड़ेगा, इफ द करंट रेशियो इज लेस देन 1 the company would be unable to pay any obligations if they fall due. So it has to be seen the ideal ratio is 2:1, we have to maintain that. और एक है एसेट करंट रेशियो, इसमें लिक्विड रेशियो में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, दैट इज अ क्विक रेशियो और ऑल्सो वी कॉल इट द एसिड टेस्ट रेशियो. सो एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं क्विक रेशियो में. हम इसमें क्या करना है, इसमें जो शॉर्ट टर्म में जो एसेट्स को या लाइबिलिटीज को नहीं मीट करने से भी चलेगा, वी कैन कीप इट फॉर द सम टाइम लेटर, तो उसको हम करंट एसेट के पोर्शन से लेस कर देंगे एंड करंट लाइबिलिटी से वो पोर्शन जो ऑब्लिगेशंस अभी मीट नहीं कर उसको लेटर ऑन भी पे कर सकते उसको मीट कर देंगे. चलिए, तो आइडियल रेशियो इसका होगा 1:1. नाउ हम क्या देंगे, बैलेंस शीट में हम देखते हैं. बैलेंस शीट में हमारे पास जो करंट एसेट्स है उसके साथ में कैश है, बैंक है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स है एंड स्टॉक है. स्टॉक में क्या क्या पोर्शन है, स्टॉक में है रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स एंड WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, अब ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये स्टॉक पोर्शन जो है वो बिजनेस के डे टू बिजनेस काम में लगेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो भी हो उसके काम में लग रहा है एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस टू अर्न इट्स लाइवलीहुड. ओके, तो वो जो स्टॉक है उस पोर्शन को हम उससे डिडक्ट कर देंगे बिकॉज उसको हमें अभी नहीं पेमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है. ओके, दैट इज़ यूज फॉर द manufacture of the product or the providing of any service, or to it is, if it is a manufacturing, not is a manufacturing concern, it's a trading concern. In that case the stock will be kept for making the trading transactions. Okay, so it will be deducted from the other cash current assets. Okay, other current assets, cash, bank, bills receivable we will take, debtors we will take, we will not take stock. And the credit side, what will we do, creditors, bills payable, outstanding expenses payable, dividend payable, tax payable. All these have to be met in the short term, but only bank overdraft can be paid later on. So from the current liabilities, we will deduct bank overdraft, and from the current assets, we will deduct stock part. So current asset minus stock divided by current liabilities minus bank overdraft. This is the quick ratio, and the ideal ratio for that is 1:1. So what we did was liquidity ratio was for short-term solvency portion. Now we have long-term solvency. For long-term solvency, we look for the solvency ratios. Okay.
this ratio we are capital structure leverage ratio, we also call it capital structure or leverage ratios, ठीक है। तो अब these tells about the financial soundness of the concern का financial soundness कैसा है, तो इसमें क्या क्या ratios है, debt to equity ratio, total debt divided by total equity, okay, total debt by total equity। अब टोटल डेप्थ जितना लॉन्ग टर्म डेप्थ है, कंपनी ने जितना लोन लेके अपने कंपनी को खड़ा किया है, तो अब एंटरप्राइज लोन लेके बाहर से जो लोन लिया, दैट इज द डेप्थ। एंड टोटल इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो टोटल डेप्थ जितना लोन्स है, डेप्थ ऑफ द लॉन्ग टर्म डेप्थ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एंड द आइडियल रेशियो फॉर दिस इज 2:1। तो ये हमने क्या किया, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। सेकेंड वी हैव प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो मतलब प्रॉपराइटर का कितना रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, जो एंटरप्राइज उसका जो पूरा टोटल एसेट्स कितना है और कितना शेयर होल्डर्स का फंड है, तो दैट इज द प्रॉपराइटरी रेशियो, ठीक है। थर्ड जो रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज डेप्थ टू टोटल एसेट रेशियो। टोटल डेप्थ टू टोटल एसेट, टोटल डेप्थ जितने हमने लोन लिए हैं बाहर से, डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में यहाँ पे फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स हम लेंगे, ठीक है। आइडियल रेशियो क्या है, 0.3 टू 0.6%, ठीक है। सो इट विल बी 0.3 टू 0.6%, विच इज द आइडियल डेप्थ टू टोटल एसेट रेशियो। इट इज रिवर्स ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो में हमने क्या किया था, टोटल एसेट बाय टोटल लाइबिलिटीज, इसमें क्या है, टोटल डेट बाय टोटल एसेट। टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट जो है कंपनी को जो बेयर करना लॉन्ग टर्म में, एंड बाय द टोटल एसेट्स, it is a more than one, then the company has more depth than its assets। तो इसको होना है कि तो रेंज किस में करना है, 0.3% टू 0.6, ठीक है। अभी इसको अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो कंपनी हैज़ मोर डेप्थ देन इट्स एसेट्स। अब फोर्थ वन लेफ्ट इन दिस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्वेश्चन जानने के लिए क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना इंटरेस्ट हमें जो पे करने हैं उसको कितना बेयर करता है हमारा अर्निंग्स, ठीक है। हमारा अर्निंग्स कितना है बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड amortization। डिप्रिशिएशन हम लेते हैं फॉर फिक्स एसेट्स एंड amortization वी कैरी आउट फॉर depreciation for tangible assets, okay, fixed assets obviously tangible assets, and amortizations for intangible assets, ठीक है। तो earnings before interest taxes, तो हमारा जितना नेट प्रॉफिट था वहाँ से हम जब इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन लेस करते, लेकिन ये सब जब लेस नहीं करने के आगे वाला जो अर्निंग था, बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, बिफोर पेइंग टैक्स, बिफोर पेइंग डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जो अर्निंग था दैट ओवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस, जितने हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट पोर्शन वी आर गोइंग टू मेक द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। Then we go to activity ratio or the efficiency turnover ratio. Efficiency company का efficiency, how efficient a company is in running its business. Activity ratio कितना active है, turnover ratio कि उसके turnover में how fast a stock, अगर stock turnover ratio हम बोलते हैं, inventory turnover ratio कितना जल्दी वो कंसर्न में जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है WIPA फिनिश गुड से, वो कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, फिर से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्नओवर रेशियो, ओके। एक्टिविटी रेशियो है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज बेस्ड ऑन, एक हम बेस करेंगे करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज पे, सेकंड बेस करेंगे फिक्स एसेट पे, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू बेस ऑन कैपिटल, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं द फॉर्मूला, इसमें हम क्या ले रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस minus closing stock, that is cost of goods sold। Yes, here one point also we can add, opening stock plus purchases plus direct expenses, direct expense जो खर्चे हुए वो, minus the closing stock, that is the cost of goods sold, ठीक है। या हम और एक फॉर्म में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यस, इफ वी गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट में, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स रहता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दैट वी डिड, ओके, minus the gross profit we get the cost of goods sold। यहाँ पे क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सेल्स पूरा था दैट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम जब निकाल रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द ओपनिंग स्टॉक,
सो वी हैव टू टेक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड जब हम निकाल रहे हैं सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तो दो वे में हम निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट आइदर, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दिस इज द वे वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये हमारी बहुत सारे रेशियो फाइंडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत सारे हम जो एसेट्स करें और फिक्स एसेट में निकालेंगे, तो एट दैट केस हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जरूरत पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू वेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, द अदर वे इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बेसिंग ऑन करंट एसेट। अभी हम करंट एसेट पे बेस अगर करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसका क्या डेफिनेशन है, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो जितना हमारा क्रेडिट सेल हुआ है, नेट that over average trade receivables. How we find out the average trade receivables? Opening debtors plus closing debtors divided by 2, that is average trade receivables. Opening debtor जितना था, closing debtor जितना है, divided by 2, that is average trade receivables. So trade receivables but debtors turnover ratio क्या होगा, net credit sales divided by average trade receivables. Okay, अब इसी बेसिस में करंट एसेट के बेसिस में निकाल रहे हैं हम डेटर्स वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कितने बार, या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर का जो पैसा हमें मिलेगा, डेटर्स मीन्स द पर्सन हम जिसे क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उससे हमें पैसा नहीं मिला है, लेकिन कितने जल्दी मिल रहा है, उसका टर्नओवर कितने जल्दी है, वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, अब इसमें एक फॉर्मूला है, क्या करेंगे, 12 मंथ्स और 365 डेज। अगर सम में प्रोवाइड किया है 12 मंथ्स, देन वी विल टेक 12 मंथ्स, और सम में दिया है इन द वर्जन ऑफ डेज वी विल टेक 365 डेज। सो द फॉर्मूला इज 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय, अभी हमने जो निकाला डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डिवाइडेड बाय दैट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सो डेटर्स वेलोसिटी और डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 12 months or 365 days divided by debtors turnover ratio. Okay, this was ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब हम देखेंगे ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल, नेट क्रेडिट परचेज जितने हमने रॉ मटेरियल्स क्रेडिट में खरीदे, ठीक है, कैश परचेज के यहाँ पे नहीं लेना है, ओनली नेट ऑफ क्रेडिट परचेज जितने लिए, दैट ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज द एवरेज ट्रेड पेबल। नाउ वी हैव क्रेडिटर्स, जैसे हमने डेटर्स वेलोसिटी निकाले, वैसे हमें क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी, हम कितने जल्दी पेमेंट करते हैं, हमारे इसका टर्नओवर रेशियो जो है वो कैसे निकालेंगे। क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे निकालना, 12 मंथ्स और 365 डेज, जो दिया है, अगर डेज में दिया तो डेज लेंगे, 365 डेज लेंगे, और अगर मंथ में दिया तो 12 मंथ्स लेंगे, डिवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो अभी हमने निकाली। तो क्या होगा, opening trade payables plus closing trade payables divided by 2 is the average trade payables. So net trade purchase divided by average trade payables हो गया। After that we get the trade payables turnover ratio। अब trade payables का जो हमारा जो creditors velocity निकालना है, तब क्या करेंगे, 12 months और 365 days divided by creditors turnover ratio। ठीक है, डन। देन वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर। अभी तो हमने सन्ड्री डेटर्स किया, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स किया, अभी इन्वेंट्री आ गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री में स्टॉक और रॉ मटेरियल्स विच आर यूज इन द बिजनेस, तो उसमें क्या क्या पार्ट है, इट इज रॉ मटेरियल्स, it is WIP, that is work in progress, it is also includes the finished goods raw materials चाहिए। अब क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हम ऑलवेज इन्वेंट्री टर्नओवर से इसको यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हम कुछ देर आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, opening stock plus purchases minus closing stock. Okay, that was cost of goods sold, or we can go the otherwise, sales minus gross profit। ठीक है, so cost of goods sold निकल गया divided by average inventory। okay, inventory में stock, average inventory कैसे निकालेंगे, opening stock डिवाइड बाय प्लस closing stock डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जैसे हम पहले निकाल रहे थे इन क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स होल्डिंग पीरियड, वैसे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, अगर मंथ में दिया है सब में तो मंथ में लेंगे, अगर डेज में दिया तो डेज में लेंगे। 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय स्टॉक
और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमने अभी निकाले. सो वी फाउंड थ्री रेशियोज. वन इज सन बेस्ड ऑन करंट एसेट्स. व्हाट वर दे? Sundry debtors turnover ratio, sundry creditors turnover ratio, and inventory turnover ratio. ठीक है. अब now we move to the second group that is based on capital. अब कैपिटल में बेस करके कैसे निकालें? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इसमें क्या दिया? इसका फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स, पूरा सेल्स जितना हुआ है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल. ठीक है. नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल. अब कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. राइट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. इसमें दो है. एक है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल. एवरेज वर्किंग कैपिटल जो आएगा, ठीक है, तो ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज वर्किंग कैपिटल जो चल रहा है. ओके. सो टोटल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. सेकंड जो है उसमें कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. एंड देन द कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है. सेकंड है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो. ठीक है. लेट्स सी हाउ वी डू इट. कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट के बोथ साइड में से हम निकाल सकते हैं. आइदर हम अगर वी आर गोइंग फ्रॉम द कैपिटल साइड देन व्हाट वी विल टेक शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस. जो बिजनेस का जितने एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. वी गेट कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड इफ वी गो फ्रॉम द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अगर एसेट साइड से जाते हैं तो हम क्या लेंगे? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. बैलेंस शीट के अगर एसेट साइड से जाएंगे वी विल टेक एज फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. एंड इफ वी गो फ्रॉम द कैपिटल साइड ऑफ बैलेंस शीट वी टेक शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. माइनस accumulated losses of the business, that is the capital employed of the business. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल कम इन एवरी सम. कैपिटल एम्प्लॉयड पोर्शन निकालने के लिए लगभग हर टाइप के सम में, जैसे कि आप पार्टनरशिप अकाउंट्स करोगे कंपनी के साथ, तो यू विल रिक्वायर द कैपिटल एम्प्लॉयड पोर्शन टू फाइंड आउट. ओके. ठीक है. अभी हमने क्या किया? एक तो कैपिटल पे बेस करके किए, करंट एसेट पे बेस करके, अब हम फिक्स एसेट के बेस पे करेंगे. Based on assets, fixed asset turnover ratio, cost of goods sold divided by fixed asset. Cost of goods sold हम जानते हैं फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंसर्न, दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. जितना पूरा फिक्स्ड एसेट है हमारा, तो पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट. ओके. अब करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करंट एसेट्स. सिंपल. जैसे फिक्स्ड एसेट का निकाले वैसे इसका भी निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करंट एसेट. एसेट टर्नओवर रेशियो. अब एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट का जो टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टोटल एसेट्स. तो पहले में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेना है, उसके बेसिस में आपका बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एसेट टर्नओवर रेशियोज. एसेट इन दिस केस हैव टू बी टेकन इनटू आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस. ओके. अब जो हम एसेट्स यहाँ पे लेंगे दैट इज दे आर सेइंग अबाउट फिक्स्ड एसेट. तो आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एंड एसेट टर्नओवर रेशियो दोनों के केस में क्या बात है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कुछ रहेंगे तो उसको हमें दे देना है, पे कर देना है. ठीक है. एंड अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसे हमें पे कर देना है. तो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वी विल टेक इनटू अकाउंट ऑफ द एसेट वैल्यू. ठीक है. Okay, now we reach the profitability ratio. अभी जो ये लास्ट पार्ट ऑफ द रेशियोज है दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. फर्स्ट में हम देखिए, जो फर्स्ट में हमने किए थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, फिर हमारे पास एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, अब बगैर प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100. Gross profit by net sales into 100. Net profit ratio, net profit after tax. Always remember, when you're finding out net profit ratio, you have to deduct the tax portion from the net profit. Net profit after tax divided by net sales into 100. Done. C is the operating ratio, operating cost डिवाइडेड बाई नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस. अभी बिजनेस में ऑपरेशंस के सिवा भी और भी कोई इनकम रहेगा तो उसको वहाँ पे नहीं लेना है. हमें क्या लेना? ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेशंस में जितने खर्चे हुए हैं वही खर्चे लेने हैं. और
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, उसके साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान हमने बेचे उसका जो खर्चा वो, प्लस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसको ऐड अप करेंगे तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, that over net sales from operations. Net sales from operations only those sales which are made from the operations of the business. जिस पर्पज में हम बिजनेस करें उससे जो सेल आए उसी को लेंगे, आपका अगर और सोर्स ऑफ इनकम होगा दैट विल नॉट बी कमिंग। नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, सो दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, अभी हमने ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बाय सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में क्या आ गया, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यस। अभी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्यों आएगा, पहले हमने सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया था, इसमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मतलब कोई भी खर्चा अगर किसी और रीज़न में हमने किया है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर दिस सेल, उसको वहाँ से डिडक्ट करना है, सॉरी इसको ऐड बैक करना है, खर्चे को मैंने डिडक्ट कर दिया है पहले से, वो इस बिज़नेस के लिए नहीं है तो उस खर्चे को हम ऐड बैक करेंगे। और कोई भी इनकम जो इस बिज़नेस से नहीं है, ऑपरेशंस विच वी आर कैरिंग आउट, इससे नहीं है तो उस इनकम को हम डिडक्शन करेंगे। इनकम हमने अगर लिए हैं इस हमारे को सेल्स के अंदर दैट इज इंक्लूडिंग, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे इनकम को। और जो खर्चे हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं लेकिन वो खर्चे इस बिजनेस के लिए रिलेटेड नहीं है तो उसको हम ऐड बैक करेंगे, तो दैट इज द ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब वो हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो दिस आर द फोर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, देन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, ओके। अब आते हैं हम अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अगर अर्निंग पर शेयर हम नहीं जानते हैं देन हम कोई एक कंसर्न में कितना उसका शेयर होल्डिंग वो नहीं जान सकेंगे, ओके। सो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लेंगे उसमें हम क्या लेंगे, आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस मीन्स द वर्ड इटसेल्फ सेइंग प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स उनको पहले हमें डिविडेंड देना है, तो हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर टैक्स, टैक्स पेमेंट कर देंगे, देन वी विल पे द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओके। अब जो प्रॉफिट पर रहेगा उस प्रॉफिट की, दैट प्रॉफिट वी विल टेक फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अर्निंग पर शेयर, ठीक है। दैट ओवर द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन दैट एज ऑन दैट डेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट कैसा है, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट्स पॉइंट्स वी रिक्वायर एज एन इन्वेस्टर। हम जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें वी विल ऑब्वियसली उसका पी रेशियो क्या है, उस कंपनी का पी रेशियो क्या है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि वो कंपनी गेन प्रॉफिट में चल रहा है कि नहीं, ना वेदर इट इज राइजिंग और नॉट और वेदर इट इज फॉलिंग। अगर फॉलो करो तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है। तो पी रेशियो व्हाट डज इट सेज, मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। वो एक जो एसेट था उसको आज सेल करके हमें जो प्राइस मिलेगा उसका जो सेल वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दैट वैल्यू, दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। सो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, हमने अभी निकाला अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बस नेट प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो अर्निंग पर एक शेयर में कितना अर्निंग है हमें पता चला, मार्केट प्राइस उस शेयर को हम बेच के मार्केट में आज के दिन में कितना ला सकते हैं, दैट इज द मार्केट प्राइस। सो मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100 इज अ पी रेशियो, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट किया उसको हमें कितना वापस मिला, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। EBIT, व्हाट इज EBIT, EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, इंटरेस्ट नहीं पे करना है, टैक्स भी नहीं देना है, ठीक है। उसके आगे जो हमारा अर्निंग था दैट ओवर द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी किया, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस current liabilities, or we go from the share capital side, that is share capital plus reserve and surplus minus accumulated losses. So EBIT is earning before interest and taxation divided by capital employed by the concern into 100, that is a return on investment by the by the owner, जो owner of the business कितना उसने capital employed किया उसके वापस में उसे कितना उसे प्रॉफिट मिला, तो he can understand how much he invested and what is the return he is getting, ठीक है।
where EBIT is earning before interest and taxes or profit before interest and taxes. Capital employed is a formula that total assets minus current liabilities or share capital, okay, and reserve and surplus. अगर हम जाएंगे फ्रॉम द एसेट साइड, टोटल एसेट्स इज फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. और अगर हम जाते हैं फ्रॉम द शेयर कैपिटल साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस accumulated losses. So this was the part what we have wanted to do about ratio analysis. Ratio analysis में यही चार पार्ट है. So one is the short term solvency, long term solvency, then we had the turnover efficiency ratio, activity ratio also we call that, and then we have the profitability ratios. Okay. Thank you.